Can you see the screen, everyone? And am I audible? Yes, ma'am. Okay. So this will today is our next lecture on advanced highway and traffic transportation engineering. We have started traffic engineering module. Okay, and under this we will learn the second lecture, which is the traffic flow characteristics, or we can say traffic flow theory. See, today we will learn what do you understand by the traffic. Okay, what are the different parameters of the traffic engineering, how we can define a traffic with the help of different parameters. Okay, there may be macroscopic parameter or and as well as microscopic parameters, and how we can calculate those parameters. So today we will learn, okay, this topic. The traffic stream parameter, we will get some knowledge about the traffic stream parameter. If someone asks you what are the three fundamental traffic stream parameter, then you can easily answer the question after this lecture. Okay, I will ask you at the end of this slide. Now, and also what will be the relationship between these parameters? Okay, they are interrelated also. So we have to find the relationship also. And with the help of this relationship and after knowing the knowledge, getting the knowledge of these traffic parameters, we will discuss one small numerical. Okay, how to compute and how to calculate those parameters. Now, what is traffic stream? Okay, as I said in yesterday's class that our traffic stream mainly composed of different components. Okay, those who are working together to fulfill one purpose, which is to transfer or carry goods or people from one place to another. Okay, so what are the different components? Those are the drivers, drivers, roadways, okay, vehicles, and the control system. Okay, so these components will work together to form the traffic stream. Okay, but traffic stream is what? It depends, as I said in yesterday's class, it depends upon different characteristic. Okay, it depends upon different factors. Among these, the most important factor is the road user and the vehicular characteristics. Okay, what should be the different factors that should be considered? As for driver, what should be the mentality of the driver, what should be the psychology of the driver, okay, what should be his physical property of a driver, because they will totally affect your traffic stream. Okay, that's why it is saying that driver's behavior and vehicular characteristic, they are not same. Okay, they will vary with person to person as well as with vehicle to vehicle. So obviously there will be some changes in the traffic characteristics also. Okay, someone is driving following all the rules and driving slowly, okay, with a much attentive manner, and another is driving very harshly. Obviously there will be some differences in the traffic flow in the both the systems. Okay, so here also we are saying that drivers behavior and the vehicular characteristic, they change. Okay, they may change from place to place also, and it will vary from person to person also. Okay, no two traffic stream will behave exactly, as I said. Why? Because it is dependent totally on the user's behavior as well as the vehicular's characteristics. Okay, with what is the dimension of the vehicle. Okay, one riding a bike and another riding a truck, both have different effect on the traffic stream. Okay, so obviously two traffic streams will not act in the same manner. Okay, so what we have to do then? So in order to define this traffic stream, then we have to develop, or we have to find out what are the different parameters which will, with the help of which we can say, acha, this type of traffic is congestion traffic, this type of traffic is free flow traffic. Okay, so there are different parameters, so we will learn those parameters only today. Okay, this is what variability in traffic stream. Why I am saying traffic stream? Traffic is considered is homogeneous to the fluid, it is considered as homogeneous to the fluid.
Fluid means what? Fluid will flow from one point to another. Similarly, traffic is also flowing from one point to another. See, it is looking like what? These are the pipelines. Suppose I'm saying it's looking like a pipelines, and these are looking like the liquid molecules, right? These are looking like the liquid flowing from different pipelines. Okay, but these are what? These are the traffic. That's why we are considering this traffic as a stream, like as if it is flowing like a river. Okay, but in pipelines what happened, that flow will be constant. Okay, there will be no interruption and all this thing. But and what happens, the main difference between this pipe water flow and this traffic flow is what? Water is a homogeneous mixture, right? Fluid is a homogeneous mixture, yeah, right. But our traffic is non-homogeneous, or we can say it is heterogeneous. Why? Heterogeneous means there are different types of vehicles. Okay, here only one, if one type of vehicles, if in this within this stream, if all the vehicles that are flowing is of same dimension, same characteristics, okay, and their drivers mentalities, physical strength, psychology are also little more or less same, then we can say that that traffic stream is homogeneous in nature. But in our case, mostly in India, our traffic stream is heterogeneous. Heterogeneous, why? Because here vehicular size varies. Here what happens in western countries, what happens, same size of, you can see almost same size of vehicles are moving in the roadway, okay, on the roadway. But in our country what happens, there are different types of vehicles in the same roadway. Bicycles are there riding, okay, in the same roadway there will be auto rickshaw, in the same roadway there will be rickshaw, in the same roadway there will be bullock carts, okay, and in the same roadway there will be passenger cars also, motorcycles also, big lorries also, okay. So there is no separate roadway for every type of the vehicle, right? Each type of the vehicle, one roadway is used by several vehicles, okay, and that vehicles are of different axle configuration as well as different dimensions also, okay, having different characteristics. That's why our traffic stream is what? It is heterogeneous in nature. So we cannot totally compare this with the homogeneous, okay. So whatever they have derived, whatever formula that you will see in upcoming these slides, those are derived for homogeneous traffic only, okay. Those formulas we cannot directly use in our heterogeneous traffic condition. For that they have done several research and all this thing, okay. They did several researches over this, because our traffic system is totally heterogeneous, Indian traffic system, okay. Now why? Because it may vary from time, with respect to time and with respect to space also, okay. Traffic flow will vary. Say for example, in the morning, okay, early morning, what do you see in the roadway? There are what is the volume of the traffic in the roadway in early morning or at the midnight? Hmm? Do you see any do you see there is some congestions and like this happening in the early morning or in the midnight? There are very less number of vehicles moving on that road, right? There will be less number of vehicles. So in that case, your traffic flow will be very less, okay. Whereas in peak hour, when you come to Bajbaj, from Bajbaj to BBIT through Chadial, what happens? In that case, you see there is huge queue, congestions are there. That means that is in peak hour, and there the traffic flow is very high, right? So what happens? Your this traffic flow increases or decreases, or we can say it varies with respect to the time also. In the morning we will not see any vehicle, whereas in the peak hour we will see huge number of vehicles, okay. So obviously your both the traffic at the in the separate time zone, they are acting differently, okay. So when you go in the early morning, when you ride bike in the early morning or in the midnight, what is the tendency? You may increase your, you accelerate, okay, you increase your speed. Whereas when you reach a congestion area or during the peak hour, what happens? Your speed gets reduced, okay. So ultimately what happening? Your speed reducing means what? Your ultimately you are affecting to the traffic stream only. Your the total traffic stream speed will be less, okay. When you are moving with the high speed means what?
we can assume that other traffics also moving in the high speed because there are less number of vehicles, so there will be interaction will be less, so you can easily you can easily increase your speed. Okay, so in this way also depending upon the space, say for example at Chadial it is jam condition, whereas when we enter to from Chadial towards inner side of the BBIT, our what happens, their flow increases. That means what, there is less congestions. Okay, so why, because that area is very much congested area. Okay, that's why, and that in that case you will see that our two lane has been decreased to single lane. Now they are constructing two lane, they are extra widening, they are widening the that portion where it is congestion is happening. Why? Because the capacity has been increased, traffic flow has been increased, so in order to conduct move the traffic in a traffic stream in a smooth condition, they are increasing that thickness width of the pavement in that particular junction. Okay, that is in Chadial. That's why what happens, see it is varying with space. Okay, in Chadial it is very jam, whereas in somewhere in between Chadial and BBIT there will be less jam. So it is varying with the space, as well as it is varying with the time also. Okay, during peak hour your congestion will be very huge in this Chadial, and in sudden where when say for example other than the peak hour there will be less jam. Okay, so that's why we can say that our traffic varies with time and with space. Now why? Because of some physical constant. As I said, there two lane has been converted to single lane, so the space available for vehicle to move is very less, so there is some physical constraints. Okay, and also due to complex driver characteristics. Okay, for that reason only your traffic stream characteristic changes with time and space. Clear everyone, this concept about the traffic? Please respond. Am I audible or not? Yes, ma'am, you are audible. Okay, so did you understand what I explained just now? In brief, I can say that I can conclude that our traffic is not same. Okay, it will vary from person to person, it will vary from place to place and with time to time also. Okay, so although the traffic characteristics vary, but there will be some range. ठीक है, मतलब कि अगर तुमको बोलेगा इतना किलोमीटर पर आवर है उस रास्ते का डिजाइन स्पीड, देन इट डजंट मीन दैट कि 65 किलोमीटर आवर में ही वहां से जाएगा सब लोग, इट में वैरी. Okay, vehicles, quick vehicles, it may move with 50 kilometer per hour, and some other vehicles it may move more than 65 kilometer per hour. So there is some range. Okay, so there variation होता है लेकिन within the range. Okay, now before going to the और details में जाने से पहले let us discuss what is facilities and what are the basic flow parameters. Okay, see facilities मतलब है कि there are two types of the facilities. One is uninterrupted flow facilities and another is interrupted flow facility. Now can you please tell me ये इससे क्या समझ में आ रहा है तुमको? What do you understand by uninterrupted? अगर तुमको if someone asks you give example of uninterrupted flow facilities. Facilities means it is a where it is like a highway or roadway. Facility means like that only. Okay, it is highway, roadway or something. Okay, so what do you understand by uninterrupted flow facility? Anyone? पहले बोलो uninterrupted से तुमको क्या आता है? किस टाइप के फैसिलिटीज में योर ट्रैफिक फ्लो विल बी अनइंटरप्टेड? कैसा रास्ता होने से तुम्हारा ट्रैफिक फ्लो विल बी अनइंटरप्टेड? बोलो, टेल मी. हेलो, no interruption. Okay, no interruption. Manjima is saying no interruption. Very good, but I'm asking you the example कि कहाँ पे no interruption होगा? समीर कुमार बर्मन बोलो या शुभजीत दत्त. Where you will face uninterrupted flow. तुम गाड़ी लेकर जाओ कहाँ, मतलब सपोज दो केस हम देख रहे, एक है कि अनइंटरप्टेड
मतलब तुम बिना किसी इंटरप्शन के गाड़ी चला रहे हो, एक है कि पूरा इंटरप्शन मतलब बार बार रोकना पड़ रहा है, राइट, ब्रेक मारना पड़ रहा है, ऐसा कंडीशन आ रहा है। एक है अनइंटरप्टेड का मतलब कि तुम जिस स्पीड में जा रहे हो हाई स्पीड में, उसी स्पीड में चलते ही जाओगे। नाउ टेल मी, गिव मी वन एग्जांपल, ये ईच का दो एक एक एग्जांपल दो कि कहाँ पे तुम्हारा वैसा होगा कि यू विल मूव अनइंटरप्टली एंड अनदर जहाँ पे तुमको बार बार इंटरप्शंस आएगा। एनीवन? आर यू देयर एवरीवन? सब हो यहाँ पे? देन प्लीज रेस्पॉन्ड। विदाउट ट्रैफिक, ट्रैफिक का मतलब क्या है मंजिमा? देन टेल मी रत्नदीप, व्हाट आई एम आस्किंग। बोलो। हाईवेज, नीलाद्री saying highway, what is highway? That is interrupted or uninterrupted? Highways is interrupted or uninterrupted? हाईवेज में तुमको कैसा फील होता है? मतलब ज्यादा इंटरप्शन आ रहा है वैसा होता है? विदाउट इंटरप्शंस, यस, दैट मीन्स अनइंटरप्टेड। ओके, सो वेरी गुड। देखो, नो एक्सटर्नल इंटरप्शन। देखो ये हाईवे अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा? देर इज नो एक्सेस, मतलब बाहर से कोई ट्रैफिक अंदर आ नहीं सकता है, राइट? तो ऐसा क्या हो जाता है? इफ कोई यहाँ पे कोई सिग्नल विग्नल भी नहीं है, इंटरसेक्शंस भी नहीं है, तो क्या होगा? तुम जिस स्पीड से आ रहे देखो उसी स्पीड से चलते जाओगे। सो दैट इज प्राइमरी एग्जाम्पल क्या है? हाईवेज, नेशनल हाईवेज या फ्रीवेज, ठीक है, फ्रीवेज। ओके, और लेकिन स्टिल हाईवेज में भी कभी कभी जैम हो जाता है। जैसे टोल टोल की तरफ जब जाओगे, हाईवे में एंटर करने से पहले यू हैव टू एंटर थ्रू द टोल, राइट? तो टोल की तरफ अगर जब जाओगे तो वहां पे क्या हो जाता है? वहां पे थोड़ा इंटरप्शन आ जाता है। तब क्या हो जाता है? इन दैट केस तब तुमको बोल सकते कि थोड़ा बहुत इंटरप्शन हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम इट इज अनइंटरप्टेड। ओके, तो हम लोग एग्जाम्पल बोल सकते हैं फ्रीवेज। नाउ इंटरप्टेड क्या है? इंटरप्टेड आर एक्सटर्नल इंटरप्शंस एग्जिस्ट, मतलब कि सिग्नल है, कोई देखो एक स्ट्रेट रोड था, अचानक यहाँ से और एक रोडवे आ रहा है, ठीक, तो यहाँ से भी एक व्हीकल आ रहा है, देखो अब ये जा रहा है तो इससे क्या हो जा रहा है? ये जो एम्बुलेंस है ये खड़ा हो गया, राइट? दैट इज नाउ व्हाट? दैट इज नाउ इंटरप्शन, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरप्शंस आ रहा है। और कहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल्स? मोस्ट फ्रिक्वेंटली आर सिग्नल्स, जहां जहाँ पे देखो सिग्नल्स है, जैसे इन लोग को जाना पड़ रहा है, दिस व्हीकल्स आर स्टॉप, ठीक है, जैसे ये लोग जा रहा है, ये व्हीकल स्टॉप्ड है अभी, ठीक है, जैसे ये व्हीकल्स लोग स्टॉप्ड है। सो सिग्नल जहाँ पे है, स्टॉप साइन जहाँ पे रहता है, वहां पे बेसिकली दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑकर्स। फ्लो मतलब क्या? पानी बह रहा है लेकिन अटक गया, बीच में अटक गया। जैसे देखो यहाँ से बहुत सारा पानी आ रहा था लेकिन दे आर एट द स्टॉप कंडीशन, दे आर नॉट फ्लोइंग, सो दैट्स व्हाई इट इज इंटरप्टेड। ओके, अब कुछ कुछ जगह क्या है, बिकॉज ऑफ दिस क्या हो जाता है, देखो धीरे धीरे यहाँ पे क्यू होना स्टार्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड द प्लेटून ऑफ व्हीकल्स। धीरे धीरे देखो यहाँ पे सिग्नल था, धीरे धीरे ये अब ज्यादा टाइम के लिए अगर होगा इंटरप्शन तो क्या होगा? प्लेटून क्रिएट हो जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड द प्लेटून्स ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। नाउ वट एवर वी विल डिस्कस, जो जो पैरामीटर्स हमको चाहिए विच विल डिफाइन द ट्रैफिक स्ट्रीम, बेसिकली किसको कंसिडर करके विच कंडीशन हैज बीन कंसिडर्ड? दे हैव कंसिडर्ड नॉन इंटरप्शन, अनइंटरप्टेड फ्लो को कंसिडर करके दे हैव डिराइव्ड डिफरेंट फॉर्मूलाज। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? इंटरप्टेड इंटरप्टेड में है एक है कि इम्पैक्ट ऑफ टाइम, एक में तुम बिना किसी इंटरप्शन के जा रहे हो, मतलब क्या, तुम जल्दी पहुंच जाओगे, राइट? और दूसरे में क्या हो जाएगा? दूसरे में थोड़ा स्टॉप हो गया, एक व्हीकल मतलब एक जगह पे सिग्नल आ गया, लाल सिग्नल आ गया, यू हैव टू स्टॉप, तो तुम्हारा टाइम में कुछ इंटरवेंशन आ रहा है, राइट? ये है एक डिफरेंस। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ द रोडवेज टू द यूजर। अवेलेबिलिटी ऑफ द रोडवेज मतलब कि कितना टाइम के लिए और कितना टाइम के लिए द रोडवे इज कैन बी यूज्ड बाय द, और रोडवे इज अवेलेबल फॉर द यूजर्स। ज्यादा टाइम के लिए अगर यहाँ पे अवेलेबल रहेगा मतलब क्या है? वो इंटरप्शन नहीं है, अनइंटरप्टेड है, ठीक है। कम टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा मतलब इट इज इंटरप्टेड फैसिलिटीज। ओके, ड्यू टू ट्रैफिक कंट्रोल्स, मतलब सिग्नल साइन, इनकी वजह से इंटरप्शन जनरली होता है। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो हम बोले थे कि इंपॉर्टेंट जो है आज का टॉपिक, विच इज द ट्रैफिक स्ट्रीम पैरामीटर्स। आई सेड दैट वी हैव टू
डिफाइन ट्रैफिक स्ट्रीम, मतलब ट्रैफिक स्ट्रीम कैसा है, वेदर इट इज कंजेस्टेड, वेदर इट इज फ्री फ्लो, वेदर इट इज कैसा है, ठीक है. फॉर दैट दीज आर द पैरामीटर्स विच विल डिफाइन द ट्रैफिक स्ट्रीम ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन. तो दो भाग में किया गया है, एक है मैक्रोस्कोपिक, अनदर इज माइक्रोस्कोपिक. ओके, मैक्रो, मैक्रो मीन्स व्हाट, बड़ा, राइट, वेयरएज माइक्रो मतलब है छोटा छोटा, राइट. तो इसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. इन अदर वे वी कैन से दैट मैक्रोस्कोपिक इज व्हाट, इट इज कंसिडरिंग द ट्रैफिक स्ट्रीम एज अ होल. मतलब पूरा ट्रैफिक स्ट्रीम का प्रॉपर्टी तुम डिफाइन करोगे एक ही पैरामीटर से, तो उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक. यहाँ पे साग्निक का व्हीकल अलग, उसका अलग कंसिडर करेंगे, ठीक है, मंजिमा का अलग कंसिडर, ऐसा नहीं है, सबका इक्वली हम लोग पकड़ के, सबको पकड़ के हम लोग ट्रैफिक को डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक. अब हम साग्निक को सिर्फ पकड़ेंगे फिर, या सिर्फ किसी एक को पकड़ के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आई विल डिफाइन द ट्रैफिक, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स. ओके, सो ये पे क्या होगा, इंडिविजुअल व्हीकल बिहेवियर, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर. लेकिन ये इंडिविजुअल मतलब सिर्फ अपना अपना नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, दोनों के बीच के जो भी है, विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर वी हैव टू डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल. ओके, तो मैक्रोस्कोपिक में आता है ये वाला तीन ठो टर्म, दिस आर द, इसको बोलते हैं थ्री फंडामेंटल ट्रैफिक फ्लो पैरामीटर्स. ओके, देखो तीन ठो है, and these are the fundamental traffic flow parameters. ये जानना जरूरी है when you will go for higher studies. ठीक है, तो देखोगे कि ये तीन पैरामीटर्स पहले तो तुमको चाहिए डिफाइन करने के लिए, इसके बाद और बहुत सारा रहेगा वो भी हम लोग डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे. बट जो तीन चाहिए कि जिसकी वजह से with the help of which we can define a traffic stream. Okay, the three fundamental or basic elements or basic parameters are traffic volume, traffic speed and traffic density. Remember these are the average, मतलब कि ट्रैफिक मतलब पूरा ट्रैफिक हम पकड़ के पूरा ट्रैफिक का वॉल्यूम, पूरा ट्रैफिक का स्ट्रीम एंड स्पीड एंड पूरा ट्रैफिक स्ट्रीम का डेंसिटी, इसको ऐसे किया गया है. ओके, और इन लोगों का करस्पॉन्डिंग छोटा छोटा जो बोलते हैं, इन लोगों का करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स क्या है, वॉल्यूम का करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर इज हेडवे, स्पीड का है ट्रैवल टाइम, डेंसिटी का है स्पेसिंग. प्लीज ये नोट डाउन करो, ठीक है. वॉल्यूम का है हेडवे, जब हम लोग रिलेशन निकालेंगे बोले थे ना, व्हाट वी शुड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द पैरामीटर्स, तो इन तीनों के, इन इंडिविजुअल इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है, मतलब इक्वेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, इन दोनों के बीच का फॉर्मूला क्या है, इन दोनों के बीच का फॉर्मूला क्या है, वी हैव टू डिटरमाइन. ओके, एंड लास्टली व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन दिस थ्री फंडामेंटल पैरामीटर्स एज वेल, जो कि इसको बोलते हैं फंडामेंटल ट्रैफिक फ्लो इक्वेशन. ओके, फंडामेंटल ट्रैफिक फ्लो इक्वेशन इसको बोलते हैं. एवरीवन क्लियर till now? देखो वॉल्यूम क्या है, एंड दिस ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्राइमरी फॉर अनइंटरप्टेड फ्लो. जहां पे इंटरप्शन आ जाता है वो अलग सा केस है. ओके, इंटरप्टेड के लिए ये लोग डिफाइन किया है. तो फर्स्ट क्या बोले थे, वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का देखो यूनिट इज व्हाट, व्हीकल पर आवर, मतलब कि एक घंटे में कितना व्हीकल क्रॉस करेगा एक सेक्शन को. ओके, ऑन अ रोडवे. See, traffic volume is defined as the number of the vehicles passing a point on highway or a given lane or a direction of a highway in specific time. इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे कि सपोज BIT के सामने जो गेट है तुम्हारा, ठीक है, उसके सामने जो रास्ता है, सपोज दिस इज दैट रोडवे. ओके, व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉ अ सेक्शन, एक चौक लेकर तुम एक सेक्शन कट करोगे. दिस इज टॉप व्यू. ओके, एंड यू आर स्टैंडिंग हियर समवेयर हियर. ओके, now what you will do, suppose अभी बजा कितना 12:30. अब तुम 12:30 से क्या करोगे, you will start to count the vehicles. किस व्हीकल को, those vehicle which will cross this section. okay, तो 12:30 से लेकर देख रहे 12:30 होके 2 सेकेंड के बाद एक व्हीकल क्रॉस किया, यू नोट डाउन इट. ओके, वन व्हीकल. फिर उसके 3 सेकेंड बाद और एक व्हीकल क्रॉस किया, फिर नोट डाउन करो 2 व्हीकल हो गया. तो वैसे करते करते फॉर 1 आवर, ठीक है, 15-15 मिनट का ईच को अगर तुम अलग अलग कर दोगे
टोटल 1 आवर का तुम कलेक्ट कर लो, ठीक है, मतलब सारे 12:30 से 1:30 तक कितना टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स हैज क्रॉस दिस सेक्शन, यू नोट इट डाउन, ओके, दैट विल गिव यू द वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम उसको ही बोलते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल हम दिए हैं कि 1 आवर में कितना गाड़ी पास किया, ठीक है। अगर वॉल्यूम को हम डिफाइन करेंगे तो क्या है कि सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कितना गाड़ी क्रॉस किया एक सेक्शन ऑन अ रोडवे, ऑन अ हाईवे, ऑन अ गिवन लेन, कोई भी लेन में लो, ठीक है, ऑन अ गिवन डायरेक्शन, हम किन सा डायरेक्शन पकड़े थे, हम इस वाला डायरेक्शन पकड़े थे, वी आर नॉट काउंटिंग द व्हीकल विच इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ये हम काउंट नहीं कर रहे, हम फ्लो मतलब क्या, फ्लो शुड बी ओनली इन वन डायरेक्शन, राइट। तो जब हम लोग इस डायरेक्शन का काउंट करेंगे देन वी विल काउंट ओनली जो जो व्हीकल इस तरफ से आ रहा है, तब वो अलग से हम काउंट करेंगे, ओके। तो हम लोग इस डायरेक्शन का ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है वी हैव काउंटेड, ओके, सो दैट इज द ट्रैफिक वॉल्यूम। और इसको यूनिट क्या बोले थे हम यूनिट क्या बोले थे, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट टाइम, ओके। तो टाइम को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया आवर में, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट टाइम, सो नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर, और इसको डिनोट भी कर सकते हैं व्हीकल पर आवर से, या वीपीएच भी बोलते हैं, ओके। इन सम केसेस दे विल गिव यू वीपीएच, मतलब व्हीकल पर आवर, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर कितना क्रॉस किया, क्लियर। प्रतीक क्लियर। আরে কি তোমরা বলতে পারছো না, আমি শুনতে পাচ্ছি না, নাকি কি গো? প্লিজ রেসপন্ড, কে একজন রেসপন্ড করো তো দেখি শুনি। সাগনিক বলো তো, হ্যালো, কে একজন বলো, শুয়ে পড়েছো নাকি? শুভজিৎ, বিশ্বাস, আচ্ছা, তো রেসপন্স করছো না কেন? নেটওয়ার্কের একটু অসুবিধা। Okay, that is the volume. Now what is rate of flow then? Rate of flow is what? Same, it is also the number of vehicles crossing a section, okay, but your time is what, it should be less than an hour, ठीक है। इसका भी यूनिट वही है, वॉल्यूम का जो यूनिट है वही है, बट यहाँ पे टाइम क्या है, लेस देन एन आवर। तो यहाँ पे आवर क्यों दिया है फिर, कि कुछ नहीं है, वी हैव कन्वर्टेड, जितना भी टाइम दिया है उसको हम आवर में कन्वर्ट करके डिवीजन कर दिया, ठीक है। मतलब 15 मिनट में सपोज 10 टू व्हीकल जाएगा, सपोज हम बोले थे इन 15 मिनट्स 100 व्हीकल्स विल क्रॉस दैट सेक्शन, सो व्हाट शुड बी द रेट ऑफ फ्लो, जैसे यहाँ पे देखो इन 15 मिनट्स 200 व्हीकल्स हैज क्रॉस दैट सेक्शन, ओके। तो इसको ये क्या है, इट इज नॉट विद इन, इट इज लेस देन 1 आवर, ठीक है। तो अब हम इसका व्हीकल पर आवर में जब निकालेंगे तो वो वैल्यू, दैट इज नॉट द वॉल्यूम, दैट विल गिव यू व्हाट, दैट विल गिव यू द रेट ऑफ फ्लो, बिकॉज ड्यूरेशन इज लेस देन एन आवर, हम लोग जो ड्यूरेशन कंसिडर किए हैं वो लेस देन एन आवर कंसिडर किए हैं, ओके। अगर वॉल्यूम कंसिडर करोगे वी हैव टू कंसिडर फॉर 1 आवर, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट आवरली वॉल्यूम क्या होगा, 15 मिनट्स में 200 व्हीकल जाएगा, तो 60 मिनट्स में कितना जाना चाहिए, 15 मिनट्स में अगर 200 व्हीकल जाएगा तो 1 आवर में कितना जाना चाहिए, कितना होगा, 15 मिनट्स में 200 है, 1 मिनट में 200 बाई 15 है, तो 60 मिनट, 1 आवर मतलब क्या है, 60 मिनट्स में 200 बाई 15 इंटू 60 विल गिव यू 800 व्हीकल्स पर आवर, ठीक है। सो 200 व्हीकल्स आर ऑब्जर्व फॉर 15 मिनट्स, ऐसा अगर ऑब्जर्वेशन आया है तो उसका रेट ऑफ फ्लो कितना होगा, दैट विल बी 800 व्हीकल्स पर आवर। बट अगर तुम वैसे और 15 मिनट्स काउंट करोगे, इन प्रैक्टिकली अगर तुम और 15 मिनट्स करते करते टोटल 1 आवर के लिए काउंट करोगे तो इट मे नॉट बी 800, ओके, वो कुछ ज्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन ये वाला जो डाटा लिया है इसका करस्पॉन्डिंग या इक्विवेलेंट आवरली वॉल्यूम इज 800 व्हीकल पर आवर, ओके। तो एक एग्जांपल हम लोग देते हैं, से फॉर एग्जांपल देखो 5 बजे से 5:15 तक वॉल्यूम कितना था, मतलब कि कितना व्हीकल्स उस सेक्शन को क्रॉस किया, 1000 व्हीकल्स, ओके।
सिमिलरली जब नेक्स्ट 15 मिनट्स में कितना व्हीकल क्रॉस किया, 1100 व्हीकल्स। ओके, तो ऐसे करते करते देखो 6 बजे तक, मतलब फ्रॉम 5 to 6, ओके, फॉर ईच 15 मिनट्स इतना व्हीकल्स क्रॉस किया है। ओके, देन व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम? टोटल वॉल्यूम कितना है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस प्रॉब्लम? वॉल्यूम कितना है बोलो? पता है वॉल्यूम? मंजिमा बोलो। हम क्या बोले थे? वॉल्यूम इज व्हाट? वॉल्यूम इज द, एज आई सेड, व्हीकल्स पर आवर, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम, ठीक है, कितना है? एक घंटे में कितना व्हीकल जाएगा? फर्स्ट 15 में इतना गया, सेकंड 15 में इतना गया, थर्ड में इतना गया, फोर्थ, तो टोटल कितना है? 60 मिनट्स है, मतलब एक घंटा है। सो इन 1 आवर टोटल कितना गया? जस्ट सम ऑफ दिस। ओके, सो दिस वैल्यू विल गिव यू द वॉल्यूम। ओके, बट नाउ व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो? रेट ऑफ फ्लो क्या है? रेट ऑफ फ्लो है तुम्हारा ये जो 1000 व्हीकल्स गया है कितना 15 मिनट्स में, तो उसका रेट ऑफ फ्लो कितना होना चाहिए? कुछ नहीं, दैट विल बी इक्वल्स टू, सी 1000 गया कितना में? 15 मिनट्स में। ठीक है, तो 1000 बाई 15 बन जाएगा कितना मिनट्स में? मतलब कि है, देखो यहाँ पे अगर करेंगे तो इन 15 मिनट्स तुम्हारा काउंट कितना था? 1000 था, राइट? 1 मिनट तुम्हारा काउंट कितना होगा? इक्विवेलेंट कितना होगा? इतना। ठीक है, तो फिर 60 मिनट्स में कितना जाएगा? सिंपली मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, तो अगर तुम इसको करोगे, ठीक है, तो करने से क्या हो जाएगा? दिस एंड दिस विल गिव यू 4, तो 4 into 1000 विल गिव यू 4000। तो देखो यही आया है। सो फॉर 1000 इसका करस्पॉन्डिंग और इक्विवेलेंट आवरली वॉल्यूम कितना है? इतना है, इतना व्हीकल पर आवर है। सो दीज आर द रेट ऑफ फ्लो। ये जो अलग अलग है, अलग अलग 15 मिनट्स का देखो अलग अलग रेट ऑफ फ्लो है। ठीक है, तो इसका इस 15 मिनट्स का रेट ऑफ फ्लो कितना था? देखो 4000 पर आवर, व्हीकल्स पर आवर, लेकिन एक्चुअल में टोटल वॉल्यूम इज व्हाट? 4200। यही बोले थे कि अगर ये रेट ऑफ फ्लो होगा, इट मे नॉट बी इक्वल टू तुम्हारा टोटल वॉल्यूम। ओके, दिस इज ओनली द इक्विवेलेंट, कि अगर ये 15 मिनट्स में इतना जाएगा तो 60 मिनट्स में कितना जाना चाहिए, अगर सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स एवरी 15 मिनट्स में आएगा तो दैट इज 4000। लेकिन सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स नहीं आ रहा है, कभी कभी ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, फिर कम आ रहा है, राइट? इसलिए वॉल्यूम हैज बीन चेंज्ड। अब यहाँ पे 15 मिनट्स ही हम लोग कंसिडर करते हैं। ओके, तो 15 मिनट्स का गैप इंटरवल हैज बीन कंसिडर्ड इन आवर एनालिसिस। तो ये हम लोग जब भी तुम लोग एनालिसिस करोगे देखना 15 मिनट्स के पकड़ के जनरली करता है। ओके, नाउ हियर इज वन टर्म, पीक आवर फैक्टर। व्हाट इज पीक आवर फैक्टर? दैट दिस वैल्यू विल रिप्रेजेंट व्हाट? यूनिफॉर्मिटी ऑफ द फ्लो। मतलब कि एवरी 15 मिनट्स में सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स आ रहा है या अलग अलग आ रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक 15 मिनट्स में बहुत ज्यादा आ गया, बाकी के 15 मिनट्स में कुछ नहीं आया। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, राइट? राइट, अगर आने से भी तो बहुत एक दो करके व्हीकल्स आया है। ठीक है, सो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? अगर सब 15 मिनट्स इंटरवल में, मतलब टोटल कितना मिनट, टोटल कितना रहेगा? 15 मिनट्स, चार्ट हो रहेगा 4 15 मिनट्स रहेगा, तो ऑल 4 15 मिनट्स इंटरवल में तुम्हारा every time same number of vehicles will come, then that type of traffic is uniform traffic, uniformly आ रहा है। और अनयूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म क्या है कि एक ही टाइम में एक बार आ गया और बाकी टाइम में कुछ कुछ करके आया, ऐसा, दैट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो और इसका यूनिट, इसका फॉर्मूला क्या है? देखो PHF, पीक आवर फैक्टर इज, दिस इज द आवरली वॉल्यूम जो हम बोले थे इसमें, पिछले वाले में जो 4200 लिए थे, ये जो है 4200, दिस इज द आवरली वॉल्यूम, दिस इज द कैपिटल V। ठीक है, और नीचे क्या था? बाई 4 इंटू VM, देखो 4 इंटू VM 15,
where VM15 is what? This is the maximum 15-minute volume. Okay, maximum 15-minute volume. ठीक है, तो सपोज ये एक एग्जांपल है, ठीक है, ये सेम एग्जांपल हम दिए हैं. अब इसमें तुम्हारा व्हाट इज V PHF, यू कैन राइट इट डाउन एज दिस फॉर्मूला और यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, दोनों सेम ही है. ठीक है, यहाँ पे V/4 इंटू VM15 है, यहाँ पे V इज व्हाट? V इज द आवरली वॉल्यूम और 4 इंटू V15 इज नथिंग बट द मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो. ओके, तो देखो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो डाटा कैसा होगा? What is V? In this case, V, as I said, this is the hourly volume. तो hourly volume क्या है? 5 से लेकर 6 बजे 1 घंटा हो रहा है, तो 1 घंटे में टोटल कितना वॉल्यूम व्हीकल्स आ रहा है, कितना व्हीकल्स क्रॉस करेगा उस सेक्शन को टोटल? बोलो ये डायग्राम देखकर, एक टेबल देखकर. What is the value of V in this table? Hmm? 4,000. Yes. So 4,000 is the value of V, right? Then what is the value of VM15? VM15 कौन सा होगा? VM15 is what? VM15 was your maximum 15-minute volume. अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम का कॉलम ये है, टोटल आवरली वॉल्यूम इज दिस वन एंड दिस आर द 15 मिनट्स वॉल्यूम. तो इसमें से मैक्सिमम कौन सा है? मैक्सिमम इज दिस वन. ओके, तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट किया. देखो 4200 4 इंटू 1200 या करके देखो यू विल गेट दिस वन. ओके, या वी कैन राइट इट डाउन आवरली वॉल्यूम बाय मैक्सिमम रेट. अब इसको रेट में कन्वर्ट कर दो, फिर वी विल टेक द मैक्सिमम रेट. तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम रेट में कन्वर्ट कर दोगे देन नो नीड ऑफ दिस 4 टर्म. ओके, डायरेक्टली ये वाला वैल्यू विच इज 4800. तो देखो यहाँ पे 4200 by 4800. तो बोथ आर वी आर गेटिंग द सेम आंसर बिकॉज फॉर्मूला सेम ही है. सो इन दिस वे PHF हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. अब देखो PHF का वैल्यू इट मे राइज बिटवीन 0.25 to 1. दिस विल कम इन योर MCQ में ये आ सकता है. ओके, पीक आवर फैक्टर लाइज बिटवीन 0.25 to 1. नाउ प्लीज टेल मी, जितना PHF वैल्यू इट विल टेंड्स टू 1 वो यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? ये इसमें देख लो, इसमें क्या आ रहा है? देखो अप्रोक्सीमेटली 0.875 आ रहा है. ठीक है, मतलब कि क्या है? इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1. ठीक है, अब टेंडिंग टूवर्ड्स 1 है तो मतलब देखो यहाँ पे पहले 1000, फिर 100 ज्यादा आ रहा है, फिर 200, फिर 900, मतलब थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म है, थोड़ा बहुत, राइट? इसीलिए इसका वैल्यू 0.875 आ रहा है. अगर ये इक्वल होता, सब इक्वल होता, देन क्या हो जाता? इट विल कन्वर्ट टू 1. मतलब फॉर यूनिफॉर्म फ्लो your PHF value will tends to 1 and for non-uniform flow your PHF value will tends to 0.25. जैसे एक एग्जांपल अगर देखेंगे, देखो 0.25 कब होता है? when all traffic is concentrated in 115 minute period. मतलब सब ट्रैफिक तुम 4 बजे से 5 बजे तक रीडिंग कलेक्ट किए थे. ठीक है, तो उस रीडिंग में देख रहा है कि क्या हो रहा है कि फर्स्ट 15 मिनट कोई व्हीकल नहीं आया, सेकेंड 15 मिनट कोई व्हीकल नहीं आया, लेकिन थर्ड 15 में इतना सारा व्हीकल आया कि टोटल काउंट हो गया 2000. फिर नेक्स्ट व्हीकल में कोई व्हीकल नहीं आया, नेक्स्ट 15 मिनट में कोई व्हीकल नहीं आया. मतलब क्या हुआ कि एक ही टाइम, एक ही इंटरवल, एक ही 15 मिनट इंटरवल में सब व्हीकल काउंट आ रहा है. ओके, नाउ इफ वी ऐड ऑल दिस थिंग वी विल गेट दिस वॉल्यूम V ये हो जाएगा. ओके, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम? मैक्सिमम 15 मिनट वॉल्यूम कितना है? 2000 ही है, बाकी तो 0 है. ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो. सो वी आर गेटिंग व्हाट? 0.25 वैल्यू. तो ये 0.25 कब होता है? जब ऐसा कंडीशन होता है. ओके, अब हम जब बोले थे 1 कब होता है? व्हेन इट विल टेंड्स टू यूनिफॉर्म, मतलब कि एवरी इंटरवल में ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स आएगा. ठीक है, तो देखो इसमें क्या आ रहा है? सब हमने एग्जांपल दिया, सब 15 मिनट्स में सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स हैज बीन अराइविंग. ओके, तो सबको ऐड कर दो, वी विल गेट वॉल्यूम इक्वल्स टू व्हाट? 4000. V इज 4000 एंड V मैक्सिमम 15 मिनट्स के इंटरवल का सब तो सेम है, तो कोई भी एक ले लो. तो 1000 बिठा दो, बिठा के यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या आएगा? देखो 1. तो ये क्या बोले थे? इट इज फॉर यूनिफॉर्म, मतलब कि ऑल इंटरवल में सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स आ रहा है. ओके, इसको बोलते हैं तुम्हारा, ऐसे हम लोग का वेरी होता है. एक ये है केस, एक ऐसा केस, लेकिन ऐसा इन जनरल नहीं होता है, राइट? कुछ कुछ चेंजेस होता है, जैसे कि पिछले वाले में हम देखे थे, इसमें देखो कुछ कुछ चेंजेस है. तो इसीलिए ये वाला क्या है? मोटा मोटी सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स आर अराइविंग, सो अप्रोक्सीमेटली ये टुवर्ड्स 1 की तरफ ही है, राइट?
अब फॉर कंजेस्टेड क्या हो जाएगा, योर पीएचएफ वैल्यू विल बी 1, ओके। बट प्रैक्टिकली क्या हो जाता है, प्रैक्टिकली फॉर रूरल एरिया वहाँ पे थोड़ा कंजेशन कम होता है, इसलिए देखो पीएचएफ इज लिटिल बिट लेस 0.7, वेरएज डेंस अर्बन एरिया जैसे कोलकाता मेट्रो, इस मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलो, दिल्ली बोलो, इन सब जगह में क्या हो जाता है, कंजेशन ज्यादा रहता है, राइट। मतलब कि हर इंटरवल में सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स आता ही रहता है, ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स आता रहता है, राइट। सो दैट पीएचएफ मतलब एक पर्टिकुलर पीक आवर में हम कंसिडर करेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम तुम थ्रू आउट 24 आवर्स के लिए करोगे, तो हम पीक आवर कंसिडर करेंगे। एक कोई भी सपोज ये सुबह का 10 से 11 में पीक आवर है, तो अब उसका हम कंसिडर करके वी विल काउंट द ट्रैफिक, ओके, एवरी 15 मिनट में कैसा आ रहा है, देन वी विल सी व्हाट इज द पीएचएफ वैल्यू। तो वैसा ही तो डेंस अर्बन में क्या हो रहा है, पीएचएफ इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.98। दीज आर द वैल्यूज यू मस्ट रिमेंबर फॉर एमसीक्यूज, ओके। नाउ ये क्या है तुम्हारा, वॉल्यूम को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कैसा, एक है देखो एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक, ठीक है, एक है एवरेज एनुअल वीकडे ट्रैफिक। ये मतलब क्या है, एनुअली तुम ट्रैफिक काउंट करोगे पर डे, ठीक है, एनुअली तुम ट्रैफिक काउंट किया पर डे, आज के दिन में इतना हुआ, करते करते 365 डेज के लिए तुम काउंट करोगे, उसको एवरेज कर दो, ठीक है, दैट इज योर एवरेज एनुअल डेली। अब एवरेज एनुअल वीकडे क्या है, पूरा ईयर में जितना भी वीक डेज है, मतलब सैटरडे संडे को छोड़ के मंडे टू फ्राइडे जितना भी वीक डेज है, उस दिन में एवरी डे कितना कितना ट्रैफिक है यू हैव काउंटेड, ओके, एंड यू हैव सम अप, अब उसको एवरेज कर दो, ठीक है, तो दैट विल गिव यू द वीकडे ट्रैफिक, एवरेज एनुअल वीकडे ट्रैफिक, ओके। तो वीकडेज का जनरली कितना नंबर ऑफ डेज होता है, 260, 365 है टोटल डेज इन अ ईयर, अब उसमें हर संडे मंडे को माइनस कर दो, देन वी विल गेट 260 डेज एज द वीकडेज। तो टोटल जितना भी आएगा डिवाइड बाय 260 करना है, और इसमें भी टोटल जितना भी आएगा डिवाइड बाय 365 करना है, एंड दिस इज 24 आवर वॉल्यूम, मतलब पर डे का वॉल्यूम हम लोग चाहिए, ओके। और दूसरा क्या है, एवरेज डेली ट्रैफिक, ये कुछ नहीं है, सेम है, लेकिन योर पीरियड विल बी लेस देन अ ईयर। तो अगर हम बोलेंगे 3 महीने का निकालो, ओके, तो 3 महीने में जितना टोटल डेज होता है, ठीक है, तो टोटल डेज में तुम ट्रैफिक काउंट किए हो पर डे, सबको सम करके डिवाइडेड बाय दैट मेनी नंबर ऑफ द डेज, ओके, उसमें संडे मंडे इंक्लूड सब कुछ है। वेरेज एवरेज वीक डेज क्या है, उसी 3 महीने में संडे मंडे को हटा दो, हटा के जितना भी दिन आएगा, तो उस उतने दिन में तुम जितना भी ट्रैफिक काउंट किए हो सम अप कर दो एंड डिवाइड इट बाय दैट नंबर ऑफ वीकडेज, टोटल वीकडेज इन दैट 3 मंथ्स, ओके, यू विल गेट एवरेज वीकडे। अच्छा यहीं तक करेंगे आज, ठीक है, ये वाला एक एग्जांपल समझा देंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, इन अ ईयर 365 डेज हम बोले हैं, 365 डेज का हम लोग मंथली डाटा काउंट किए, तो जैसे देखो जनवरी में नंबर ऑफ वीक डेज कितना था, 22 था, ठीक है, वेरस टोटल डेज कितना है, संडे मंडे सब जनवरी का 31 डेज का होता है, सो 31 डेज, ओके। फेब्रुवरी देखो टोटल डेज है 28, उसमें सिर्फ वीक डेज कितना है 20, संडे मंडे को हटाकर, तो वैसे करके करके आ गया, ठीक है। तो टोटल वीक डेज इन अ ईयर कितना है, 260 है, एंड टोटल डेज इन अ ईयर कितना है, 365 है, ठीक है। अब जनवरी में तुम्हारा टोटल वॉल्यूम कितना है, मतलब फॉर 31 डेज कितना टोटल वॉल्यूम, एक दिन में इतना आया, सेकेंड दिन में इतना आया, तो 31 डेज में टोटल इतना वॉल्यूम आ रहा है। वैसे फेब्रुवरी में कितना आया, करते करते सबको सम अप कर दो, देन व्हाट यू विल गेट, दिस इज द टोटल वॉल्यूम for 365 days, okay। Then what is AADT, average annual daily traffic, हम क्या बोल रहे थे, ये टोटल जितना भी तुम्हारा 365 डेज में टोटल कितना व्हीकल आया डिवाइडेड बाय 365, ओके, सी इतना इज द एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक, ओके। अब दूसरा क्या है, एवरेज एनुअल वीक डेज ट्रैफिक निकालो, ठीक है। तो ये वाले देखो टोटल वीकडे वॉल्यूम, मतलब जनवरी में कितना दिन था वीकडेज, 22 डेज था, 22 डेज का ट्रैफिक काउंट कितना है, इतना है, फॉर जनवरी फॉर फेब्रुवरी सेम इतना है, करते करते सबको ऐड कर दो, सो दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल जितना वीकडेज था, कितना वीकडेज था एक ईयर में, 260 डेज, तो 260 डेज में कितना ट्रैफिक है, दिस इज द नंबर, ओके। देन व्हाट इज द AAWT, जस्ट एवरेज, हम बोले थे क्या करना है, एवरेज करना है, तो टोटल डिवाइडेड बाय 260, टोटल एवरेज वॉल्यूम सॉरी वीकडे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वीकडेज, टोटल नंबर ऑफ वीकडेज, ओके। इज दिस क्लियर, आज के लिए इतना ही करो, नेक्स्ट टाइम से हम लोग बाकी का करेंगे, ओके।
Is it clear, everyone? We will discuss the other parameters. So the volume हो गया, next parameter will be density and next will be your speed. Okay, speed and density. तो speed में एक तो आएगा SMS and TMS. That is very important. Okay, then if there is no confusion, कोई confusion है तो बोलो, नहीं तो you dismiss for today. Okay, आज के लिए इतना ही है. আছো কি কি গো তোমরা? কিছু তো বলা যাচ্ছে না।